Hallelujah. No enemy can stand when his praise goes forth. Hosanna, Hosanna. कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन आपके सामने, इस कलीसिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये युद्ध आप और मैं नहीं लड़ने वाले हैं. आपका परिवार, हमारा परिवार, जो लीडरशिप है वो नहीं लड़ रहे हैं, परमेश्वर लड़ रहा है. हालेलुया. और जीत हमें उसने दी है. 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर, सलीब पर जीत हमने हासिल की और आज उस जीत में ही हम सब जी रहे हैं. वी आर स्टेइंग एंड लिविंग, वॉकिंग इन विक्ट्री. आमेन. Can I hear aloud? Amen. You can do better than that. If you are victorious, shout it now. Amen. Hallelujah. That's it. Amen. Let the enemy know that you know, that you know, that you know that you have the victory. Hallelujah. The psalmist said in the last verse of the 23rd Psalm, mercy, goodness and mercy. Goodness and mercy. Say that, people. Goodness and mercy. करुणा और भलाई. बोलिए, करुणा और भलाई. Goodness and mercy shall follow me. They will follow you. They will follow your family. Goodness and mercy shall follow the Kabod temple. Goodness and mercy shall follow every believer who puts his trust and her trust in the living God. Hallelujah. Blessed be his name. Someone said goodness and mercy are like those two angels that will follow you wherever you go. You walk this side, goodness and mercy follows you. You turn this way, goodness and mercy walk after you. Hallelujah. You walk straight, they are walking after you. These two angels, according to the 23rd Psalm, follow every believer wherever they go. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. Pick up the tempo, please. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा, देखूंगा मैं उम्र भर. एक और बार, करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी. Thank you, Jesus. सदा रहेगी मुझ पर. Yes, Lord. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा, देखूंगा मैं उम्र भर. तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, सहारा है मेरा. मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. एक और बार, यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. थैंक यू लॉर्ड. मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी. Come on, young people, sing it. सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता.
यदि मैं उस मौत की खाई में से, तराई में से मैं चलता हूं, तब भी तेरी लकड़ी ओ वो मुझे स्थिर करती है। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy rod, thy staff, they comfort me. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। थैंक यू जीसस। नाम लेकर पुकारा मुझे। थैंक यू लॉर्ड। महिमा से मुझको भर दिया। मौत से गाइए, मौत से बचाया तूने, यस जीसस, जीवन नया है दे दिया। थैंक यू लॉर्ड। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Sing it now, His goodness and mercy, करुणा भलाई तेरी। Sing it over your families, come on. सदा रहेगी मुझ पर। Thank you Lord. तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं, देखूंगा हम, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Sing a church, sing a church. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh, lift up your name, Jesus, in this place. We lift you up, Lord Jesus, in this city. Lift you up in India. Lift you up in the Kabod Temple, the Shiloh Tabernacle Assembly. Lift you up, Jesus, in our homes. Lift you up, Jesus, in the Dowry and the Mahal family. We lift you up, Jesus. Take the name of your family. Come on, come on, come on, church. Take your names and say, be lifted up, Lord Jesus. Be lifted up, Lord Jesus. Be lifted up, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Truly, Lord, we lift up your name. You said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. तू बोला यीशु, यदि तुम मुझे उठाओ, मुझे उठाएंगे तो मैं सारे लोगों को, राष्ट्रों को, मानव जाति को मेरे पास खींच लूंगा। और इसलिए आज यीशु तुझे हम यहाँ पर उठाते हैं, हमारे घरों में उठाते हैं। तू ऊंचा किया जाए, तेरा नाम ऊंचा हो। ओ उस नाम के सामने हम दंडवत करते हैं, हम घुटनों के बल जाकर बोलते हैं, यीशु तू प्रभु है, यीशु तू खुदा है, यीशु तू राजा है। हालेलुया। We proclaim you as King and as Lord in this place today. Be glorified, be magnified. And Father, I ask you today in the name of your Son Jesus that you would touch us, Lord. Touch us from the heavens in this time of the days of awe. Pour out your glory, pour out your spirit upon us, I pray, and let the manifested presence of your glory, of your presence and your spirit be felt in this place. तेरी रूह इस जगह में उतरे आने दे, तेरा मस्सा इस जगह में उतरे आने दे। ओ तेरा अभिषेक हर एक जन को यहाँ पर छू ले, उनके मनों को छू ले। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं बांध देती हूँ, और यीशु के लहू से हमें तो घेर दे, इस जगह को घेर दे, हर एक परिवार को घेर दे, और तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए।
वचन के बोलने को और तेरे बंदे को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। अभिषेक से उनके मुंह को भर दे और हर एक शब्द और वचन हमारे दिलों को छूने वाला हो सके। सारा आदर और महिमा और जलाल यीशु के नाम को ही देते हैं, जिस सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। Can I hear aloud? Amen. Hallelujah. Yeah, can we all be seated? God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome to the house of God. This is a year of habitation. This is a year of dwelling. Like I said, Hallelujah. how many of you have been listening to the teachings on this year, this new year? नए साल के इस जो मैं आपको पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, 5, 7, 8, 2 के उस विषय को, प्रचार को कितने लोगों ने सुना? Hallelujah. और जरूर ही ये वो साल है जिसमें हम आशीष और बरकत पाने वाले हैं। आमीन। Amen. I was just being blessed by preparing it. और देखिए, मैं जब ये प्रचार करने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, प्रभु के वचन पर अध्ययन कर रहा था, तब मुझे बैठकर वहां पर आशीष मिल रही थी। Amen. So Amen. there's many things I cannot say because we are online. अब बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन पर भी हमारे But लोग You देख can रहे see the हैं, expression on my face. लेकिन मेरे मुंह पर कुछ आपको दिख कर आ रहा होगा। I can't see some of your faces. It's fine. Don't take it out. अब It's good. मास्क के मारे कुछ Hallelujah. लोगों के पर निकालना नहीं, आपके मुंह पर ही रखना। We are children of God and we abide by rules Amen. and we take precautions. Amen. देखिए, हम खुदा के बच्चे हैं और हमें भी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। So before I start, happy birthday to Kabod Temple. Amen. और शुरुआत करने से पहले कबोट टेम्पल को इस बर्थडे के शुभकामनाएं, Yes. जन्मदिन के शुभकामनाएं। 29 years ago, but Kabod Temple has been here for 2 years. और 29 साल शाइलो टैबरनेकल से होकर आज तक हुए हैं। कबोट टेम्पल को जब से शुरुआत किया था उसको केवल 2 साल हो गए हैं। So नाम बदलने के for बाद। those watching online, you know a little history. We don't have time to give you the history of the church. जो लोग ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं, हमें जो हिस्ट्री है हमारे पिछले दिनों की बातें अब बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन बाद में जरूर बताऊंगी। So we're not going to be too long with the sermon this morning because we have other Amen. activities we're going to do together, and we're going to Amen. have a wonderful time in the Lord. आज के वचन में और प्रचार में ज़्यादा समय हम नहीं बिताने वाले, क्योंकि उसके बाद कुछ हमें चीज़ें करनी हैं जिसमें हम आनंद भी लेंगे और प्रभु के स्पर्श को भी हम महसूस करेंगे। Amen. Amen. So let us just pray. Holy Spirit, we Hallelujah. thank you this morning. आइए हम सब दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा, तुझे आज सुबह के वक्त हम धन्यवाद देते हैं। Open up our hearts to receive from you this morning. हमारे दिलों को, हृदयों को तू खोल ताकि तुझसे हम आज ग्रहण करने पाए। Open up our spiritual eyes so we can see, and our spiritual ears that we can hear. Amen. हमारी रूहानी आंखों को और कानों को खोल ताकि हम देख पाए और तेरी आवाज को सुनने And पाए let us be soaked in your presence. और तेरे हुजूरी में पूरी तरफ से तू हमें भिगा दे। In Yeshua's name we pray. Amen. यीशुआ के नाम से मांगते Amen. हैं, आमीन। Hallelujah. So we continue with our series on prayers. आइए, आज जो प्रार्थना के विषय पर हमारी श्रृंखला हमने चालू की थी, उसी को हम आज जारी रखेंगे। Amen. So I started off, if you remember, the prayer of consecration. मैंने, अगर आपको याद आ रहा होगा, कुछ सप्ताह या हफ्ते पहले जो समर्पण की प्रार्थना होती है उसके बारे में बताया था। So we had the prayer of petition. उसके बाद में याचना की प्रार्थना मैंने बताई थी। Last week was the prayer of authority. और फिर उसके बाद वाली जो मैंने आपको सिखाया था प्रार्थना के विषय में, कौन सी प्रार्थना थी? अधिकार वाली And प्रार्थना। this morning is the prayer of thanksgiving. Amen. आज सुबह के वक्त मैं धन्यवाद के प्रार्थना के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। And first of all, the Holy Spirit would like to say thank you all. Amen. और पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद पहले देना Yes, चाहते हैं। thank you, Holy Spirit, for being here before we could Amen. even come here this morning. That's right.
इस जगह में आप और मैं आने से पहले ही पवित्र आत्मा मौजूद था, इसलिए हमारा फर्ज होता है उसको धन्यवाद देने And का। all of you, if you were given a chance to just come up here and give thanks to God for the That's right. things He has been doing during this time, you would go on, and I would have to stop you. आमीन। अगर मैंने आपको अभी मौका दिया किसी को भी यहाँ पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, गवाही देने के लिए, आप बहुत से लोग आएंगे, बोलते जाएंगे, शायद हमको आपको रुकाना भी पड़ेगा। So the prayer of thanksgiving is mentioned 15 times in the New Testament. अब देखिए धन्यवाद वाली ये प्रार्थना 15. 15 बार नए नियम में इसका बयान किया है। Now the word used for the prayer of thanksgiving is another word like I mentioned before. We had the prayers in English is called prayers, in Hindi or Marathi is called pratna or dua. So in the Greek they used different words. प्रार्थना ये शब्द, इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द दिए गए हैं। प्रार्थना है, दुआ है, दुहाई है, लेकिन यूनानी भाषा में उसका अर्थ अलग होता है। Now the word used for the prayer of thanksgiving is the word Eucharistia. That is the Greek word. If you don't remember, it's fine. अब यूनानी भाषा में सुनिए गौर से, जो शब्द इस प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है यूकरिस्तिया, यूनानी भाषा वाला शब्द धन्यवाद की प्रार्थना के लिए। EU is the U. यू मतलब EU इंग्लिश में लिखा जाता है। So that means good, something that is good. EU जो उस शब्द का पहला किस्सा है, उसका अर्थ होता है कुछ भली या कुछ अच्छी चीज। When you have a good feeling about something. That's right. अब किसी चीज के बारे में जब आपके मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है। And Charistia, यूकरिस्टिया, यू हमने देखा, उसके बाद में करिस्टिया का क्या मतलब है? I think the parents knew this. Some of you who named your daughters Christina must have knew this. So the word charis, that's where we get the word grace. कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को ये नाम भी दिया होगा। क्रिस्टीना भी यही शब्द से आता है। कैरिस, करिश्मा, कैरिस मतलब कृपा, अनुग्रह। So हालेलुया। together it's feeling good about something. Amen. And it's a response in your heart Amen. that you have to something which you have received, something good that you have received. आमीन। सुनिए, बहुत खूबसूरत शब्द है ये। आपके मन में आप किसी चीज के बारे में अच्छा समझते हो, मान लेते हो, और ये भली जो चीज होती है जिस पर आपने विश्वास रखा है, आपने वो प्राप्त की है और उसकी रहमत आपकी जिंदगी पर है। Amen. हालेलुया। Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हर बात, कितने बातों में? हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। So I've been saying during the week in our weekly meetings that we need to abide in Jesus, because that is the will of the Father. So Amen. this morning, Yes. this verse is telling us that God has a will for us, and that will is Amen. to give thanks for everything, not for Amen. certain things, but for everything. अब हर एक प्रचार में मैं ये बोलता आ रहा हूं, आपको और मुझे परमेश्वर के इच्छा के अंदर रहना जरूरी होता है। और उसके इच्छा में रहना क्या होता है? उसके इच्छा के अनुसार हमें धन्यवाद की प्रार्थना हर एक बात के लिए, धन्यवाद की प्रार्थना हर एक चीज के लिए उसको देनी होती है। Every situation, every occasion, give thanks. That is God's will. आमीन। हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल और हालात में परमेश्वर को आप पहली क्या करना है चीज? धन्यवाद देना, क्योंकि ये आपका फर्ज होता है। It has become a habit. Sometimes, even if I'm not careful enough, we go more into the complaining part instead of going into the thanksgiving part. देखिए, आपका और मेरा, हम मानव है, हमारा स्वभाव है, धन्यवाद देने के पहले जब हम कुछ मुश्किल में गिर जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं? हम तकरार करने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और धन्यवाद करना भूल जाते हैं। Thanksgiving for everything. लेकिन पहली चीज धन्यवाद कर लेना उसी मुसीबत में, और सारे बातों के लिए धन्यवाद You देना know, प्रभु this को। morning, आज सुबह after meeting after quite a long time, I don't know how many months, और बहुत ही महीनों के बाद में, इसलिए लग रहा है बहुत सालों के बाद में लोगों से अब मुलाकात हो रही है आज। one day there'll be a day when you're going to go in front of the bima seat.
लेकिन ऐसे ही एक दिन आने वाला है भाइयों बहनों, जब बीमा सिंहासन के सामने आप सभी को खड़े होना पड़ेगा। God is going to say, thank you for your commitment. और वहां जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने अकेले खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपको देख के बोलेगा, तुम्हारी विश्वास योग्यता के लिए मैं धन्यवाद करता What हूँ। is commitment in Hindi? Commitment. सुनिए, समर्पण। God is going to thank you. There is a reward for commitment. अब समर्पित लोगों के लिए इनाम अलग है। Now, when I was praying, I was praying, and we normally all pastors say this: Jesus Christ is coming very soon. बहुत से पासवान ये बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, यीशु जल्द आ रहा है। For 2,000 years we've been hearing this. 2000 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं। Not us, but all the Christians have been hearing this for 2,000 years. आप और मैं केवल नहीं, हम 2000 साल के नहीं बन गए, लेकिन जो पहले के मसीह थे वो भी यही बात सुनते आ रहे हैं कि यीशु जल्द आ रहा है, यीशु Yes, जल्द आ रहा he है, is coming soon. जरूर जल्द आ रहा है, He is coming soon. The signs are there. वो जरूर ही जल्द आ रहा है, क्योंकि सारे चिन्ह हमें दिख रहे हैं। And listen, लेकिन सुनिए, when Jesus comes, he wants to take a church, his church. जब यीशु आएगा, अलग अलग कलीसिया के लिए वो नहीं आने वाला है, उसकी कलीसिया के लिए वो आ रहा है, When- उसकी मंडली, उसकी कलीसिया को उठा के ले जाने के लिए। You know, when some people say that God spoke to them, yes, God spoke to me, not audibly, but in thought. He took me to the incident of Gideon. अब जब परमेश्वर मुझसे बातें करता है, कभी कभी मेरे विचार, सोच विचारों को वो अपने हाथ में काबू में लेता है। अब ऐसे हुआ, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था और मुझे उसने गिदोन के उस कहानी में वो मुझे ले गया। He did not use an army of 35,000, but he used an army of 300. गिदोन, आपको पता होगा, वो पुराने नियम में एक बड़ा महावीर था, योद्धा था। उसने बड़ी सेना को नहीं इस्तेमाल किया, केवल 300 सैनिक थे। So what about those? How much? 34,700. Yes, 34,700. What happened to them? अब सुनिए, 300 ही उसने चुनकर निकालकर उन सैनिकों को इस्तेमाल किया उस जंग में, पर बाकी के जो 34,700 सैनिक बच गए थे, उनके बारे में क्या हुआ? They too, there was an army. There were soldiers. They had training in combat. I think they had an armor. They had armor on. वो 34,700 भी सैनिक ही थे भैया, उनके पास हथियार थे, उनके हाथों में औजार थे, सारे हथियार थे, वो बिल्कुल तैयार थे, सैनिक थे। Why were they not chosen? But why only the 300 were chosen? वो Chosen. बाकी सैनिकों को हटाकर उनमें से केवल 300 को ही क्यों गिदोन ने चुना? क्यों? Now, when Jesus comes to take his church, सुनिए, यीशु जब उसकी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, I thank God that you have been, for those who are the oldest in this church, have been taught from the book of Revelation and Daniel by late Pastor Jayan Davre. और जो हमारे पास्टर डावरे ने आपको, जो पुराने मतलब बहुत दिनों से, सालों से चर्च में आते हैं, उनको ज़रूर ये प्रकाशित वाक्य का जो प्रचार है और सिखाना है, आपने ज़रूर सीखा होगा पास्टर डावरे के द्वारा। And I know there is a prayer of thanksgiving for all those teachings that you received from him. और जो कुछ भी उन्होंने आपको सिखाया, बताया, उसके लिए एक धन्यवाद की प्रार्थना ज़रूर आपके मन में होगी और उनको भी ज़रूर वहाँ पर इनाम मिला Now होगा। listen, Jesus is coming back. That's a fact. लेकिन सुनिए, यीशु आ रहा है, ये जो बात है बिल्कुल होने वाली है। But before coming back, he has to refine his church. लेकिन उसकी आमद होने से पहले यीशु को उसकी कलीसिया को शुद्ध करना पड़ेगा। Like I said, not every Christian that sits down in church is going to be taken up in the rapture. सुनिए, हर एक मसीही व्यक्ति जो आकर कलीसिया में कुर्सी पर बैठता है, हर एक वो व्यक्ति उस दुल्हन में शामिल नहीं होगा, उठा के परमेश्वर नहीं ले I'm not जाएगा। talking about this church. इस कलीसिया के बारे में नहीं बातें कर रहा। We all going. Amen? हम सब तो Come जा on. रहे हैं। Are we all आमीन going? बोलिए। We are going. Now आपको what's going to जाना है या happen? नहीं? You know आमीन। what's going to happen? Listen carefully. अब क्या होने वाला है जब हम जाएंगे? What we are witnessing right now, COVID, this is nothing. आप अभी अभी जो ये देख रहे हैं, सब तरफ तांडव मच गया है कोविड के मारे। ये कोविड कुछ भी नहीं है। Riots, violence, that's Hey. nothing.
हिंसा और सब दंगे और सब कुछ जो मारा मारी चल रही है, कुछ भी नहीं वो। Do you know of how many wars are actually taking place right now as I speak? अब जब मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ आपसे, अभी अभी इतने ज्यादा युद्ध दुनिया में कहीं तो भी चल रही है, आपको पता है क्या? If only you hear the stories. I'm telling you, there is war right now in Tigray, in Ethiopia. There is war happening right now in Libya. There is war happening in Mali, in Congo. There is wars, fighting happening right now in Afghanistan. सुनिए, There's so many, I can go on and on. युद्ध और जंग, आप यहाँ पर आराम से बैठे हो, लेकिन दुनिया में कई हिस्सों में और भाग में, अफगानिस्तान बोलो, इथियोपिया बोलो, which other place, कॉन्गो बोलो, All the सब places. तरफ वहाँ पर युद्ध और जंग चल रहे, अभी अभी हो रहा है। And the war now, those are war where they are killing each other physically. Now there's another war taking place in Western countries, for example, Canada. We have Canada, we have United States, which now they are going against the church. Can you imagine? अब एक दूसरे प्रकार का युद्ध भी होने लग रहा है भैया, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये युद्ध अमेरिका, कनाडा में अभी शुरू हो रहा है। और ये युद्ध किसके विरोध में है? कलीसिया के विरोध I में। will say it even though we're online. Many people are saying the president of United States, that old man is such a sweet man. He has a lot of feelings. He's a very good man. अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, ये जो अब का प्रधानमंत्री है अमेरिका का, बुजुर्ग है वो, लेकिन वो बड़े अच्छे हैं, कितने शांत है, कितने अच्छे हैं। No. And he's very dangerous for India. उनका मन कितना अच्छा है। नहीं 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 भैया, आप भरमा के मत जाइए, उनका मन भारत के लिए बिल्कुल ही नहीं है। You know, if only the politicians would have Christian advisors That's right. in their administration. That's right. In India, भारत they will में, learn a lot of things. भारत में सरकार में अगर उन्होंने कुछ मंत्रालय में कुछ मसीह लोगों को अगर रखा केवल उनको सलाह देने के लिए, तो बहुत से चीजों से वो अपने आप को बचा सकते हैं। Because of this man who is weak in America right now, he is going to allow China to become more powerful, That's right. more aggressive, which means more trouble for India in the border, at the borders. सुनिए, ये आदमी जो अभी प्रधानमंत्री है अमेरिका का, उसकी शक्ति और ताकत कमजोर होती जा रही है, लोग उससे नफरत कर रहे हैं। इसीलिए वो क्या करेगा? चीन को बढ़ने देगा, क्योंकि चीन जब बढ़ेगा और बढ़ोतरी होगी, तब उसको भी ज्यादा शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, लेकिन भारत को उसके मारे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। I went, of course, but this is actually going to happen. ये मेरे प्रचार और विषय को छोड़कर मैंने बोला, लेकिन ये चीज आगे जाकर होने वाली है। The weaker America gets, the stronger and more aggressive That's right. Russia gets. Now Russia That's right. is mentioned in the Bible, in Bible prophecy. सुनिए, Iran is allowing Iran to get stronger with nuclear weapons. जितना कमजोर अमेरिका होता जाएगा, उतनी ज्यादा ताकत ईरान और रशिया को मिलती जाएगी। रूस के बारे में, रशिया के बारे में पवित्र शास्त्र में, कलाम में, भविष्यवाणी में बयान किया है। Turkey. टर्की के बारे में, तुर्कस्तान। So all these countries are becoming more aggressive, stronger, and it is written down in Bible prophecy. All that the Bible has That's right. prophesied about is happening right before our eyes. ये सारे राष्ट्र जो है वो ताकतवर हो रहे, इनका नाम भी तक कलाम में लिखा गया है और हमारी आंखों के सामने ये सब आज होता जा रहा है। So thank God that our Indian government is in good terms with Israel. We are going to be building drones for Amen. Israel and planes. So thank Amen. God that we are on the good side. प्रभु की स्तुति और उसको धन्यवाद हो कि हम जो है अब हम ड्रोन्स और प्लेन्स हम बना रहे हैं और उसके मारे हम थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, इसलिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। Not about the drones, but because we are friends with Israel. और इस्राएल के साथ हमारी दोस्ती है, इस राष्ट्र की भी दोस्ती है और वो पक्की दोस्ती है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना So are चाहिए। you thankful this morning? क्या आप धन्यवाद देना चाहते हो The आज? fact that you are here, you are thankful for what has been happening. You know, God is looking at the level of commitment because let me Amen. tell you why. I'll tell you why. आपका मन धन्यवाद देने वाला, धन्यवादी मन होना चाहिए। पौलुस समर्पण के बारे में क्यों बोलता है? I give you your level of commitment by coming here this morning because आमीन। because आपके समर्पण का दर्जा, आज सुबह आप यहाँ पर आकर बैठे,
मौजूद रहे, इससे ही दिखता है, दर्शाता है। How many of you go out to work? क्यों? क्योंकि कितने जन हैं जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, नौकरी के लिए। Among people. You don't work with robots, you work with people. आप बाहर जब नौकरी में जाते हो तब आप लोगों के बीच में होकर जाते हो, आप मशीनों के बीच में नहीं काम When करते। you go to the bazaar, when you go to buy your chicken and your meat, when you go to the butcher, all these places are packed with people. You are not the only person out there. जब आप बाहर मार्केट में, बाजार में जाते हो, मटन और मछली खरीदने के लिए जाते हो, तब आपके आसपास कौन होते हैं? लोग होते हैं, जानवर नहीं, मशीन नहीं, लोग होते हैं। आप लोगों के बीच में जाते हैं। No, they also janwar. There's a lot of dogs, but everything is there. The dirt is there, the filth is there. The people are sick also who are there. The person, Yes. the money that you're touching is got germs. Everywhere That's you right. go, there are people. So why not? Why not come together as a church? That's Why right. are you afraid to come together as a church? सुनिए। Why are you not afraid to go out and work? सुनिए, बहाना देना आसान होता है, लेकिन आप रोज बर रोज थोड़ी घर में बैठे रहते हैं, बाहर कभी ना कभी जाते, बाजार में इधर उधर। बोलने का मतलब है, अगर बाहर जाके सारे जर्म्स को आप इकट्ठा करके घर में लाते हैं, तो प्रभु के घर में आने के लिए इतना क्यों डरते हैं? I give thanks every time I go out and I come back home. I have to give thanks to God. That's Thank you, right. God, for protecting me. That's right. And when I enter into the house, if there's anything which is not from you, let it stay right. outside. That is how we thank God. देखिए, जब मैं भी बाहर जाके अंदर घर में फिर आता हूँ, प्रभु को मैं धन्यवाद पहला देता हूँ कि तूने मुझे सुरक्षित रखा, तूने मुझे महफूज रखा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु तुझे। और मैं बाहर जाता हूँ, अंदर आता हूँ, ये तेरे सुरक्षिता में होता है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। How many of you, if you want to buy a new shirt or a new dupatta or a new kurti, you go to wherever you go to, whether it's Fashion Street or whether it's MG Road, whether it's the mall, you go. कितने जन आप में से जब आपको कुछ खरीदना होता है और आप दुकान में जाते हो, कुर्ता ये वो खरीदने के लिए आप जाते हैं ना? जाते हैं, जरूर जाते हैं। ऑनलाइन के लोगों को बता रहा हूं मैं। I give thanks. You know why I give thanks? I'll tell you why. मैं धन्यवाद देता हूँ, और क्यों देता हूँ मैं उसका कारण बताऊंगा। Sometimes when a maid would come to the house to for job, for work, कभी कभी हमारे घर में जब नौकरानी कोई आती है, लड़कियां आते हैं काम और पूछने के लिए, मांगने के लिए, and then they would say, I would like to work for you, but I want these holidays which I have to go and put my this in there or do this one or do this prayer. Yes, I have to do it. I will not come. I'm telling you now. And very, I say, okay, you can go. We don't want you. Okay. ये लड़कियां ऐसे भी होती है भैया, घर में आती है बड़े रो रो के, और उनका जो मुंह और चेहरा होता है बिल्कुल गिरा हुआ होता है। बोलते हैं मैडम हमें काम दे देना प्लीज़, पैसों की ज़रूरत है। हम बोलते हैं ठीक है बेटा, काम को लग जाना, कल से आ जाना। तो तुरंत क्या बोलती है, नहीं मुझे 3 दिन ना छुट्टी आप दे दोगे। काम लगने से पहले ही छुट्टी मांग Yes. लेते हैं, हमें ये करना है, पूजा पाठ वो करना है, इसलिए 3 दिन देना। तो हम क्या बोलते हैं उनको, दरवाजे में से आप फिर से अपने घर जाकर ही बैठ जाओ, अगर इस तरफ का काम करना है तो मत आना। I was amazed at the level of dedication. They even refuse. If you refuse them that holiday, they will not come to work for you. सुनिए, इतने घमंडी ये भी लोग होते हैं, उनको अगर छुट्टी नहीं दी, दूसरे दिन से वो आना ही बंद कर देते हैं। You serve a great and awesome God. मतलब You उनका are- समर्पण का दर्जा देखना। Hallelujah. आप एक महान परमेश्वर के आप भक्त हो। You are serving the God of Abraham, Isaac. You are serving the Amen. God of Israel. अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल के परमेश्वर के सेवक आप हो। The true and living God. वो सच्चा परमेश्वर है। What is your commitment? आप ही सोचिए, आपके समर्पण का स्तर या दर्जा कितना है, कितना ऊपर है। If those people have so much of dedication and they have so much of they have fear, and you may say no, but they are religious. So what? बाहर के धर्म के लोग, उनकी वफादारी देखना, उनके समर्पण का दर्जा और स्तर देखना, कितना उन्होंने पिछले दिनों में किया। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में डर होता है, अगर नहीं किया कुछ खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन खुदा के लोगों के मन में डर, कुछ लोगों में डर बिल्कुल नहीं है। Yes, बिल्कुल ही नहीं। you're only afraid when it comes to church. बिल्कुल डर नहीं, तभी थोड़ा सा डर लगता है जब प्रभु के घर में आके बैठते हैं। Listen, सुनिए, I say it again. फिर बोलूंगा, Things are going to get much worse. ये दुनिया की चीजें और हालातें और भी ज्यादा खराब होती जाने वाली है। That is why I said during this year, 5782, the 2 refers to Jesus. 5, 7, 8, 2 ये जो बरस
रोश हशाना से शुरू हो गया, 2 जो है यीशु को दर्शाता। And you know, the rabbis, they study the forms of the letter in Hebrew. And the form of the letter tells you something about the number or the time, that appointed time that we are in. देखिए, ये जो रूप होता है, ये जो संख्या या अंक होते हैं, रब्बी लोग जो इब्रानी लोग के अगवे होते हैं, वो क्या करते हैं, हर एक संख्या या अंक का अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर उसको सब सोच समझकर उस साल को वो लोगों तक बताते हैं या पहुंचाते हैं। So like I said, the 2 looks like a tent, it looks like a house, a dwelling place. It is a year of dwelling. Amen. Who dwells? It's a year of dwelling, that Amen. Jesus comes back. He comes back into your Hallelujah. life, into your home, into your family life. Wherever you go, Jesus Amen. is with you. You need to speak. The word 80 means that it's about speaking. It is about words. All you do is speak about Jesus. 2 संख्या 5, 7, 8, 2 जो संख्या है, अंक है, वो है वास करने का, निवास करने का, मतलब अपना ही स्थान, अपना ही घर। वो जो अक्षर है वो एक तंबू के रूप में उसका आकार है। उसका मतलब होता है कि आप अपने घर में, या ये कलीसिया उसके घर में इस साल में रहने जाने वाली है। हालेलुया। जिनको घर नहीं, इस साल में घर मिलने वाला है, अपना ही परमानेंट। ये विश्वास रखकर आप बैठ लीजिए परमेश्वर में और स्वस्थ बैठिए। और So this morning, the prayer of thanksgiving means give thanks. That is the God's will. That's not my will. That is not your will. It's Amen. God's will in everything. No matter what happens, in everything, देखिए, give thanks. आज सुबह के वक्त मैं आपको बता रहा हूं, हर एक बात में, हर एक चीज में, हर एक हालात में धन्यवाद देते रहना, धन्यवाद की प्रार्थना बोलते जाना। When things are going to get much worse, क्यों? क्योंकि जब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, we are going to continue to give thanks. मुश्किलें बढ़ने वाली है, लेकिन जब वो बढ़ेंगी तब आप वही जो धन्यवाद पहले दे रहे थे, बस वही चीज आप उधर भी करने We're लगोगे। going to continue to praise Him Hallelujah. and worship Him. आप उसकी स्तुति आराधना वहां पर भी करते रहोगे। Thank In you, Lord. everything, give thanks. सारी बातों में धन्यवाद देना। I'm not being negative this morning, but things are going to get worse because the मैं- Bible says so, not me. मैं नकारात्मक रूप से आपके मनों को बिल्कुल निराश नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जो बातें, जो हालात है दुनिया की, और भी बुरी होती जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम दिन है और ये होने ही वाला है। But God has also given us the good news, and He's given us the solutions Amen. to when these things start to happen. When we are walking through that valley of death, like we sang in the Yes. morning, He doesn't remove us, He doesn't take us out, He doesn't rapture us. No, you'll be raptured. No, He walks alongside with us. सुनिए, मौत के उस खाई में जब आप चल रहे हो, मौत की वो तराई है, आप चल रहे हो उसके अंदर, ये प्रभु क्या आपको ऐसे उठा के बालों को खींचकर वहां से नहीं निकालता है, उधर ही चलने लगाता है, रखता है, पर आपको वहां पर सुरक्षित रखता है। Okay. आपकी रक्षा वो करता है उस मौत की खाई में। हालेलुया। Let's be honest, all of you. अब ईमानदारी से आप बताइए, सब ईमानदारी से बोलेंगे। Haven't said, Lord, why don't you come today or tomorrow, please, because there is a certain situation, and then you see all the things happening, and the certain things are happening right in your life right now, and you say, Lord, please come right now. कितने How many लोग- of you? कितने लोगों ने बोला होगा? on. अब ईमानदारी से बोलिए। Thank God. कितने लोगों ने बोला है Yes. कि यीशु तू आज ही आना, अभी अभी आ जाना, क्योंकि मैं थक गया हूँ, अब कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद में कुछ कर नहीं I have सकता, done अभी this. आ जा। I've मैंने done it. किया है, सबने किया है। I've done it. Come on, lift up your hands. if you- ईमानदारी if से you said it, बताइए come अगर on. किया है। मैंने किया है। Hallelujah. Some of you are very strong. Praise God. अब Now बाकी listen. के लोग बड़े तंदुरुस्त हैं, हम उनके बारे में नहीं बोल सकते कुछ। Praise God. But this, when you see these things happening, this is the tip of the iceberg. देखिए भैया, ये मुश्किल जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो ऊपर का वो नेक है उस आइसबर्ग का। Things are going to be amplified. जो चीजें आगे भविष्य में होने वाली है, ज्यादा बढ़कर ज्यादा खतरनाक होने वाली है। That is why God reminds us each day to give thanks इसीलिए for परमेश्वर everything. आपको बोल रहा है, एक ही चीज रोज कर लेना। आप क्या करना है? धन्यवाद की प्रार्थना, सारे बातों के लिए धन्यवाद देना, Amen. धन्यवाद देते जाना। हालेलुया, Amen. हालेलुया। So we end.